Hello everyone, welcome back to Learning Arc. I hope you guys are doing well. In our previous videos, we dived into basics of syllogism and understood how to handle the conclusion, positive conclusion. Okay, if you haven't watched those videos yet, I highly recommend you checking them out first for a solid foundation. Okay, so before we dive in, don't forget to like this video, subscribe, and share this video. Okay, so today we are moving a step ahead and we will be tackling negative conclusion and the possibility statements. Okay, in the last lecture we studied the affirmative conclusion, right? Positive conclusion. So here we will be studying negative conclusion. Okay, and the possibility statement. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव कंक्लूज़न के लिए कि जब भी हमें पॉजिटिव कंक्लूज़न या अफर्मेटिव कंक्लूज़न दिखाई दे, हमें डायरेक्टली वेन डायग्राम से अपने मिनिमम ओवरलैप डायग्राम से आंसर करना है, राइट? हम उससे डायरेक्टली देख के आंसर कर सकते हैं. तो अब नेगेटिव कंक्लूज़न क्या होते हैं? इन दिस केस वी हैव टू विजुअलाइज ऑल द पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, हमें अपने वेन डायग्राम में अपने जो डायग्राम हमने ड्रॉ करा है उससे हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करनी है. एंड ये ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, जब भी हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करें तो हम उन स्टेटमेंट्स को वायलेट ना करें. ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. इफ़ वी आर गिवन सम ए आर बी एंड सम ए आर बी एंड सम बी आर सी. ठीक है, वी हैव बीन आस्क्ड दैट सम ए आर नॉट सी, इज इट पॉसिबल और नॉट? In this case, see, this is a negative conclusion, so we have to consider the possibility. अगर हमें लिखा होता कि if a some a or c is it true or not, तो हम यहाँ से देखेंगे सम a और c के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम कह देते हैं कि नो इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था. बट इन दिस केस वी हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, कैसे बनाएंगे? लेट्स रीड्रॉ द डायग्राम टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी. वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी डू नॉट वायलेट सम ए आर बी एंड सम बी आर सी. ओके, लेट्स ड्रॉ सम ए आर बी. See, in this condition we haven't violated that some A R B and some B R C, and we can also see that some A is overlapping with some C, right? Some A R C. From here we can conclude some A R C. This is a possibility, right? Some A could be C, so some A and not C cannot be true. Okay, in this way we have to consider all the possibilities when we are given negative conclusion. Okay, and we do not have to draw such diagrams all when we are doing these questions in exams. We just have to visualize it. We have to keep it in mind. Okay, never violate the statements. Okay, and about the possibility statements, these are completely similar to negative conclusion. These are not no any different. There is no any difference between negative conclusion and possibility statement. They are completely similar. We just have to visualize them and consider all the possible cases that we can draw, and then we have to answer. Okay guys, चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल द विंडोज़ आर डोर्स, नो डोर इज़ अ वॉल. सारी की सारी विंडोज़ डोर्स हैं और कोई भी डोर वॉल नहीं है. ठीक है, आई होप गाइज आपने पुराने लेक्चर्स पढ़ लिए हो. अगर नहीं पढ़े हैं, आई रेकमेंड प्लीज़ उन्हें पढ़ लो एंड देन उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं. ड्रॉ कर लेते हैं. ऑल द विंडोज़ आर डोर्स. ठीक है, नो डोर इज़ अ वॉल, कोई भी डोर वॉल नहीं है. तो हमने अपना मिनिमम ओवरलैप डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब कंक्लूजन में चलते हैं. ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन इज सम विंडोज़ आर वॉल्स. सम विंडोज़ आर वॉल्स. सी, ऑल द विंडोज़ आर डोर्स एंड नो डोर इज़ वॉल. सारी की सारी विंडोज़ डोर्स हैं और कोई भी डोर वॉल नहीं है, तो कोई भी विंडो वॉल नहीं होगा. So this conclusion does not follow. No wall is door. कोई भी wall door नहीं है. See from the diagram it is very clear that no door is wall. And कोई भी wall door कैसे होगा फिर जब कोई भी door wall नहीं है तो, right? So this one is does follow. ठीक है, this is a case of vice versa. No door is a wall, so no wall will be door. I already taught it in the previous videos. Do check that out. So हमारा आंसर क्या है? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज. ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑल कप्स आर बुक्स,
सारे के सारे कप्स बुक्स हैं. लेट्स ड्रॉ दिस. ऑल द कप्स आर बुक्स and all books are shirts. All the books are shirts. See, many of you must be thinking that why I haven't drawn like this. And then the shirts. See, there is no any relation between cups and shirts. That's why I haven't drawn it like this. If you would have given that some cups are shirts, then I would have drawn it like this. Okay guys. सो यहाँ पे हमें मिनिमम ओवरलैप डायग्राम ड्रॉ करना है, ये हमें ध्यान में रखना है बस. ओके. तो फर्स्ट कंक्लूजन है सम कप्स आर नॉट शर्ट. कुछ कप्स शर्ट्स नहीं हैं. ठीक है. वेट अ मिनट. इट इज़ सेड दैट ऑल द बुक्स आर शर्ट्स. इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस. सॉरी, माई मिस्टेक. या नाउ द डायग्राम इज correct. The previous example stands correct, but here we have to draw all the books like this only. Okay. All the shirts like this. All the books are shirts. Some cups are not shirts. See, in the negative case I said we have to consider possibilities, but from here we can see जब सारे के सारे कप्स बुक्स हैं एंड सारे के सारे बुक्स कप शर्ट्स हैं, तो सारे के सारे कप्स तो शर्ट्स होंगे ही, राइट. ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे कुछ कप्स शर्ट्स नहीं हो सकते. वी कैन नॉट ड्रॉ इट ईदर, राइट. तो this does not follow. All the cups will always be shirts in all the cases. Okay. Some shirts are cups. Yes, it is true. जब सारे के सारे कप शर्ट्स हैं तो कुछ शर्ट्स कप्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो कुछ शर्ट्स तो कप होंगे ही, राइट. दिस कंक्लूजन इज ट्रू. सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. थर्ड क्वेश्चन इज नो डोर इज डॉग. कोई भी डोर डॉग नहीं है. नो डोर is dog. Okay. All the dogs are cats. All the dogs are cats. चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्या है कंक्लूजन. नो डोर इज कैट. लेट्स redraw the diagram because this is the negative conclusion and we have to consider the possibilities, right. Let's redraw it. चलिए इसको कुछ इस तरह से redraw कर लेते हैं. Let's say this is my cat. Okay, this one is cat. Let's see if we have violated any statement or not. No door is dog. No door is dog. It's not violated. All the dogs are cats. All the dogs are cats. Okay, let me write it here. This dotted part is cat. Okay, सारे के सारे डॉग कैट्स हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं सारे के सारे डोर भी कैट्स हैं. तो नो डोर इज कैट इज़ नॉट पॉसिबल. सारे के सारे डोर कैट्स हो सकते हैं, राइट. और वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो. देखो हम इसको एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते थे. सी, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. तो कुछ डोर तो कैट हो ही रहे हैं, तो दिस डज नॉट फॉलो. नेक्स्ट केस इज नो कैट इज डोर. कोई भी कैट डोर नहीं है. बट फ्रॉम दिस डायग्राम दैट वी हैव विजुअलाइज्ड वी कैन सी दैट कुछ कैट्स डोर तो हैं. तो दिस ऑल्सो डज नॉट फॉलो, राइट. हमने कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं करी, ठीक है. एंड वी ड्रॉ द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम and we visualized all the negative test cases, right guys. तो ये भी फॉलो नहीं करेगा. some cats are dogs. some cats are dogs. yes, some cats can be dogs. it is visible from the diagram. all the cats are dogs. सारे के सारे cats dog हो सकते हैं? नहीं, it's not possible in any of the cases. सारे के सारे cats dogs के अंदर कभी नहीं जा सकते, इसलिए ये वाला फॉलो नहीं करेगा. so only conclusion 3 follows. चलिए नेक्स्ट. अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट आ गया. लेट्स सी. सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट. ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ऑल टेबल्स आर चेयर. ऑल द टेबल्स आर चेयर्स. एंड ऑल चेयर्स आर बेड्स. एंड नो बेड इज सोफा. ठीक है, चलो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट बेड्स. कुछ टेबल्स जो हैं कि वो बेड हो ही नहीं सकते, ऐसा उसने बोला है. ऑल द टेबल्स आर चेयर्स एंड ऑल द चेयर्स आर बेड्स. सारे के सारे चेयर बेड भी हैं, तो सारे के सारे टेबल तो बेड्स होंगे, है ना. हम क्या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कोई भी टेबल बेड ना हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारी कंडीशन वायलेट कर देगा. आप ड्रॉ करके देख सकते हैं चाहे तो. दिस डज नॉट फॉलो. नो सोफा इज टेबल. नो सोफा इज टेबल.
अब देखो हमें क्या कहा गया था, कोई भी बेड टेबल सोफ़ा नहीं है। देखो सारे के सारे टेबल्स बेड्स थे और कोई भी बेड सोफ़ा नहीं था। जब हमसे कहा गया कोई भी बेड सोफ़ा नहीं है तो हमें पता था कोई भी सोफ़ा बेड नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई नो सोफ़ा विल बी टेबल, दिस इज़ ट्रू। ओके, नो चेयर इज़ सोफ़ा, कोई भी चेयर सोफ़ा नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे नो है, यू मस्ट बी से थिंकिंग दैट वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी पॉसिबिलिटी है। सी नो सोफ़ा इज टेबल। अगर मैं सोफ़ा को किसी भी उसके अंदर डाल दूँ, अगर इसके अंदर कहीं भी बनाने की कोशिश करूँ या ऐसे बनाने की कोशिश करूँ तो इट विल वायलेट द कंडीशन दैट नो बेड इज़ सोफ़ा। ओके, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी पॉसिबिलिटी इन दी नेगेटिव कंक्लूजन। ओके गाइज, नो चेयर इज़ सोफ़ा, कोई भी चेयर सोफ़ा नहीं होगी। येस, सारे के सारे चेयर क्या हैं, बेड्स, और कोई भी बेड सोफ़ा नहीं है। दैट्स वाई नो चेयर इज़ सोफ़ा। दिस वन ऑल्सो ट्रू। सम टेबल्स बीइंग सोफ़ा इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल सोफ़ा हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, इसने ये बोला। देखो यहाँ पे ही हमें दिया हुआ था नो सोफ़ा इज़ टेबल, कोई भी सोफ़ा टेबल नहीं है। सम टेबल्स बीइंग सोफ़ा इज़ अ पॉसिबिलिटी, इज़ इट पॉसिबल। अगर कोई भी बेड सोफ़ा नहीं है तो कोई भी टेबल सोफ़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सो दिस ऑल्सो डज नॉट फॉलो। सो कंडीशन ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। देखो यहाँ पे हम इसकी पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर आपको देखना है आप ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फैन इज कूलर, सम कूलर्स आर हीटर्स, ऑल ट्यूब्स आर फैंस। लेट्स ड्रॉ दिस, सम ऑल ट्यूब्स आर फैंस, ओके, and no fan is cooler and some cooler are heater. Okay guys, तो चलो देखते हैं। No cooler is a tube, no cooler is a tube. Yes, it's true. Why? Because सारे के सारे ट्यूब फैंस हैं और कोई भी फ़ैन कूलर नहीं है, तो कोई भी कूलर फ़ैन नहीं होगा, तो इसीलिए कोई भी कूलर ट्यूब नहीं हो सकता। दिस इज़ ट्रू। Okay, that's why we are not considering any possibility here because it is quite clear from the diagram itself. Okay, all tubes being heaters is a possibility, all tubes being heater is a possibility. Let's draw the diagram कि कोई possibility है कि नहीं है, ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो हीटर बनाना है हमने, let's draw the heater like this. Let's say this one is our heater. Are we violating any condition? No fan is cooler, no fan is cooler. Yeah, this is true. Some coolers are heater, some coolers are heater. This one is also true. All tubes are fan. This one is also true. We are not violating any condition and we have considered this is a possibility. All the tubes being heater is a possibility. Yes, this one is true. It is a possibility. It's a possibility that all the heaters can be tubes. All the tubes can be heater, sorry. Okay guys, so this one was the minimum overlap diagram. We just have to draw this only and we have to visualize in our mind that it is a possible or not. Okay, so both of these two conclusion follow here. Okay, so this is all for today. In the next video we will be covering either or case. Make sure you don't miss it, it's a very important case. So if you found this video helpful, give it a thumbs up and share it with your friends, and do subscribe our channel, that is Learning Arc. So this is Learning Arc signing off for now. See you in the next video. Till then, keep studying and happy learning. Bye.